الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارک اللہ فیکم. سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے. سورہ فاتحہ اونچی آواز سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ألف لام ميم. اونچی آواز سے. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم میں دیکھتی وأولئك ہوں. هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم. ہاں جی پیارے بچوں سے ایک سوال ہے. جو پرانے بچے ہیں ان کو تو پتہ ہے, نئے بچوں کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں. ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک. ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ کون بتائے گا کیوں ہے وہ بیسٹ فرینڈ؟ کیونکہ ہم لوگ اسے پڑھتے ہیں. ہم اسے پڑھتے ہیں. آپ ادھر آ کے ان کی آواز میں بتاؤ. کیونکہ وہ ہمیں سیدھے راہ دکھاتا ہے. اور قرآن پاک ہمارا بیسٹ فرینڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہم لوگوں کو جو اس کو قرآن مجید کو پڑھے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اس نے مجھ سے پڑھا ہے تو اس کو جہنم میں نہ ڈالیں. ہاں ٹھیک ہے. بیٹھو. جو ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں نا وہ کب تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ جب تک ہم لوگ کسی مشکل میں نہ پھنسیں. جب تک ہم لوگ سارے فرینڈ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. اکثر شکایات کس سے ہوتی ہیں؟ فرینڈ سے ہی ہوتی ہیں. لڑکی آگے کیا کہتی ہے ماما کو؟ ماما وہ جو ہے نا اس نے یہ کر دیا, ماما وہ جو ہے اس نے وہ کر دیا. وقتی طور پہ فرینڈز ہوتے ہیں نا, سامنے فرینڈز ہوتے ہیں, لیکن اندر سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید ایسا فرینڈ ہے جو انسان کے ساتھ ساری جو اس کی تلاوت کرے گا اسے ثواب ملتا رہے گا, اس کو ساری زندگی اس پہ برکت رہے گی. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا اوپر آسمان پہ نا اللہ تعالیٰ کو وہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن جو ہے وہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے, جب انسان کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ سورہ ملک قرآن پاک کی سورت ہے. کس کس کو پتہ ہے؟ سورہ ملک جو روز رات کو تلاوت کرتا ہے نا, جب انسان فوت ہوتا ہے اسی وقت آ کے وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. قبر میں جا کے وہ سورت اس کی سفارش کرتی ہے. کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 30. صرف 30 آیتوں کی ایک سورت ہے. وہ اس کی سفارش کرے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کہے گی کہ اس کو قبر کا عذاب نہ دو. قیامت والے دن اگر جب کسی انسان کو جہنم دکھائی جائے گی نا, ٹھیک ہے, کسی کو کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ گنہگار تھا, اس کو آگ میں پھینکنے لگیں گے, تو وہ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو آگ میں پھینک دے, مجھے بچا لے. اتنی خوفناک آگ. پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو آگ میں پھینک دے, میری بیوی بچوں کو آگ میں پھینک دے, اس پوری دنیا کو آگ میں پھینک دے, لیکن مجھے بچا لے. اس وقت ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی, ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی. تو انسان اور جو قرآن مجید ہے وہ کیا ہے؟
जब हम पढ़ते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं और हर हर्फ पर कितनी नेकी मिलती है? 10 नेकियां। अलिफ लाम मीम से कितनी हो गई? 30 नेकियां। तो उस वक्त कोई भी अपनी नेकी किसी को नहीं देगा, शाफे इब्राहिम को नहीं देगा, इब्राहिम शाफे को नहीं देगा, सब कहेंगे हमने अपनी अपनी नेकियां रखनी है, सब एक दूसरे को छोड़ देंगे, मामा पापा बच्चों को छोड़ देंगे, बच्चे एक दूसरे को बहन भाइयों को छोड़ देंगे, सबके क्या काम आएगा? उधर नेकियां काम आएंगी, नेक अमाल काम आएंगे। तो जो कुरान की तिलावत है, देखो उससे आप कितनी नेकियां समेट सकते हो ना। एक पेज पढ़ोगे, एक हर्फ ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका में कितने हर्फ हैं? ज़ाल लाम काफ, 3 हर्फ ही हो गए, 30 नेकियां यहाँ से हो गई। तो आप जितनी तिलावत करोगे उतनी आप लोगों की अगर नेकियां 4 हर्फ हो गए तो फिर हम लोगों को 40 नेकियां हो गई। शाबाश। क़यामत वाले दिन जो कुरान मजीद है ना, वो एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएगा। कैसे आएगा अहमद? एक खूबसूरत चमकता हुआ इंसान चमकता जिसने हुआ। साफ कपड़े पहने होंगे साफ और कपड़े। वहाँ पर कभी भी रात में अभी मेरी बात सुन लो ना, फिर एंड पे बताना, ठीक है? एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएगा, ठीक है? वो आगे कहेगा ये इंसान मेरी वजह से रोज़ा रखता था। कुरान मजीद में पता चलता है ना, रोज़ा रखता था, रात को नमाज पढ़ता था। तो वो कहेगा हर शख्स अपनी तिजारत के पीछे दौड़ता है, आज मैं तेरी तिजारत हूँ, ऐ मेरे रब इसको इनामात से नवाजिए। कुरान क्या कहेगा अल्लाह ताला को? इसको इनामात से नवाजिए। तो अल्लाह ताला उसे इज्जत का ताज पहनाएंगे। फिर वो मजीद कहेगा अल्लाह ताला इसे और इनाम दीजिए। अल्लाह ताला उसे फिर इज्जत का लिबास पहनाएंगे, शाही लिबास। कभी शाही लिबास देखा है बादशाहों का? वो लिबास पहनाएंगे। फिर वो कहेगा अल्लाह ताला इससे राजी हो जाइए, वो जोन सा सिर के ऊपर पहनाते हैं। कहेगा अल्लाह ताला इससे राजी हो जाइए। तो अल्लाह ताला उस शख्स से राजी हो जाएंगे, ठीक है? कुरान मजीद इंसान की शक्ल में आएगा और आप लोगों के लिए सिफारिश करेगा। कुरान मजीद सिफारिश करता रहेगा जब तक आपको जन्नत में भेज नहीं देगा। ये वो कौन लोग होंगे जिनके लिए सिफारिश करेगा? जो कुरान मजीद सीखते हैं, कुरान मजीद में महारत हासिल करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, सिखाते हैं दूसरों को और सिखाते भी हैं। जी। और जो कुरान मजीद में महारत हासिल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत वाले दिन उसे खाकी सफ़ों से निकाल कर नूरानी सफ़ों में खड़ा कर दिया जाएगा। खाकी सफ़ें कौन सी हैं? आम लोग खड़े होंगे। उस शख्स को अहलुल कुरान को निकाल के फरिश्तों की सफ़ों में खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जत देंगे, ठीक है? अल्लाह ताला कहते हैं इस कुरान को हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने उठाई है। आप लोग स्कूल जाते हो, किताबें किसकी हैं? स्कूल की, दुनिया की किताबें हैं, लेकिन जो कुरान है किसकी किताब है? अल्लाह ताला की किताब है। तो आप लोग गौर करो, हम अल्लाह की किताब को इतनी अहमियत देते हैं कि नहीं देते? स्कूल जाते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, कुरान की क्लास में टाइम पे आते हैं कि नहीं आते? कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे नहीं आते हैं। अल्लाह ताला ने इस किताब को किताबे नूर बनाया। इस किताब की वजह से क्या होता है? जिसको अल्लाह ताला ने रोशनी देनी होती है ना, उसे इस किताब की तिलावत नसीब फरमाते हैं। इस किताब से एक और फायदा है, इससे बीमारियां खत्म होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां खत्म होती हैं? कोई भी जैसे कैंसर, जिस्मानी बीमारियां भी खत्म होती हैं तिलावत सुनने से, तिलावत करने से। और दिल की बीमारियां, कौन कौन सी हैं दिल की बीमारियां? हार्ट अटैक की बात नहीं कर रही, कौन कौन सी? तकब्बुर, कीना, हसद। इससे हम हसद होता है ना लोगों से, जेलसी होती है। अगर आप लोग ये समझ के पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो दिल की बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब कौन कौन तिलावत किया करेगा? इंशाअल्लाह। पूछा कौन कौन किया करेगा? क्वेश्चन क्या था? को हम जो करेंगे वो हाथ खड़ा करें। इसका जो इज्जत के ताज पहनाए जाएंगे ना, सिर्फ उनको नहीं पहनाए जाएंगे जो कुरान सीखता है सिखाता है, उनके वालिदैन को भी पहनाए जाएंगे। अल्लाह ताला वो वालिदैन कहेंगे हमारी किस नेकी का अजर मिल रहा है? हम तहज्जुद पढ़ते थे,
हम सदका करते थे, उन्हें कहा जाएगा नहीं, ये जो आपने कुरान पकड़ाया था ना अपने बच्चों के हाथ में, उसके लिए जो आपने मेहनतें की थी, इन्हें कुरान सिखाया है, इनको हिफ्ज़ करवाया है, इसके लिए जो आपने जितनी मेहनत की है ये उसका सिला मिलेगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। अब कौन कौन सही सीखेगा कुरान पाक? कौन कौन ज़्यादा छुट्टियां करेगा? कौन कौन लेट आएगा? चलो अब हम इब्राहिम के लिए दुआ करते हैं। इब्राहिम ने पढ़ा है, इसको कबूल फरमाए, आमीन इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आमीन इसको हमेशा सारी जिंदगी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन इस कुरान को इब्राहिम के दिल का नूर बना दें, आमीन इब्राहिम के गम दूर करने का जरिया बना दें, आमीन दुनिया और आखिरत में इसके जरिए से कामयाबियां अता फरमा दें। आमीन अल्लाह ताला हम सबको कुरान के जरिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए, हमें समझ आ जाए कि कुरान हमारा असली फ्रेंड है, हमारा असली दोस्त कौन है? कुरान। जब भी परेशान हो ना कोई, तो उसे क्या चाहिए? मोबाइल खोल के बैठ जाए? नहीं। कुरान खोल के बैठ जाए। टिकटॉक देखे? नहीं। कुरान खोले। कुरान में अल्लाह ताला आपसे बात कर रही है। ठीक है, अगर कोई कहता है ना मैंने